جرائم پیشہ عناصر کرائے کے مکانوں میں مقیم فیصل آباد پولیس کرایہ داروں کا ڈیٹا جمع کرنے میں ناکام ہے۔ غیر رجسٹرڈ افراد کے خلاف کارروائی میں 3 گنا کمی ہو گئی۔ فیصل آباد پولیس نے رواں سال تھانوں میں عارضی رہائش گاہ رجسٹرڈ نہ کرنے والے صرف 130 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے۔ گزشتہ سال کرایہ داری ایکٹ کے تحت 361 مقدمات درج ہوئے تھے۔ کرایہ داری ایکٹ پر عمل درآمد نہ ہونے سے جرائم پیشہ عناصر کے لیے کرائے پر مکان حاصل کرنا آسان بن گیا۔ سردیوں کی آمد سے قبل ہی سوئی گیس کا بحران، جنگ میں گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل، مہنگی ایل پی جی بھی پہنچ سے دور، شہری ہوٹلوں سے کھانا خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ جنگ میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ روز بروز طویل ہونے لگا۔ صارفین کہتے ہیں سردیوں کی آمد سے قبل ہی گیس کا غائب رہنا معمول بن گیا۔ گیس نہ ہونے سے کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مہنگے داموں سلنڈر خریدنے پڑتے ہیں۔ ساری شاپ پڑی ہوئی ہے، صرف سوئی گیس کی وجہ سے سارا نظام تباہ ہو گیا۔ اور وہ بھائی چائے والے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار 10 روپے 5 روپے کس چیز کے مہنگے ہیں۔ میں کہ گیس بھی بھر رہے ہیں، گیس سلنڈر بھی بھروا رہے ہیں، سلنڈر بھی نہیں پورا ہو رہا ہے، وہ بھی مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے دن بہ دن، اور ہر بندہ پریشان ہے۔ گھر والے تو اس طرح پریشان ہے کہ کھانا پکی کوئی نہیں رہا۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی میں باہر سے کھانے کا انتظام کرنا بہت مشکل ہے۔ حکومت لوڈ شیڈنگ میں کمی اور ایل پی جی کی بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرے۔ اصل میں پورے جنگ میں گیس 24 گھنٹے میں صرف 4-5 گھنٹے آتی ہے۔ صبح کے ٹائم تو بالکل نہیں ہوتی، بچے بغیر ناشتہ کے اسکول چلے جاتے ہیں، دوپہر کو بھی نہیں ہوتی، شام کو آتی ہے 1-1.5 گھنٹہ، پھر اس کے بعد نہیں ہوتی۔ پورے 24 گھنٹے میں گیس ہے ہی نہیں، ابھی بھی گیس نہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں، صبح 6 بجے کی نہیں ہے۔ تو اب ہم بتائیں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپیل ہی کر سکتے ہیں نا گورنمنٹ سے۔ گورنمنٹ کو احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں گیس اویل کرے۔ اب ہم ٹیکس دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، اس کے باوجود کچھ نہیں۔ بڑھتی مہنگائی اور سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ درد سر بن گئی۔ شہریوں نے حکومت سے ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد ارباب احمد کے ساتھ وسیم عزیز، City 41 جنگ۔ گنے کی قیمت کا اعلان ہوا، نہ خریداری شروع۔ چنیوٹ کی شوگر ملوں میں کرشنگ شروع نہ ہونے سے کاشتکار پریشان، 1.5 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں خراب ہونے کا اندیشہ، گندم کی بوائی بھی متاثر۔ چنیوٹ کی شوگر ملوں میں کرشنگ شروع نہ ہونے سے کاشتکار پریشان ہیں۔ 1.5 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی کماد کی فصل خراب ہونے کا خدشہ، گندم کی بوائی بھی تاخیر کا شکار ہونے لگی۔ کاشتکار کہتے ہیں گنے کی قیمت کا اعلان نہ خریداری شروع ہو رہی ہے۔ نومبر میں گندم کی فصل کے بیج بوئے جاتے ہیں، کماد نہ کٹنے کی وجہ سے گندم کی فصل بھی تاخیر کا شکار ہو رہی ہے۔ گنا کٹے گا تو گندم بنجے گا نا۔ ابھی ایک تو گنے کا ریٹ بہت کم ہے، گنے کا ریٹ کم از کم 600 روپے ہونا چاہیے۔ ٹھیکے اتنے بڑھ گئے ہیں، اخراجات اتنے ہیں، سپرے ادویات اتنی مہنگی ہیں کہ چیخیں نکل گئی ہیں عوام کی۔ اور ادھر سے گنے کا ریٹ، کوئی چینی دیکھو کتنی مہنگی ہے، ہمیں ہمارا ذمہ دار کو حق نہیں ملتا۔ اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ ابھی اتنا کماد کھڑا ہے، اگر فیکٹری نہیں چلے گی، گنا نہیں کٹے گا تو پھر کیسے گندم کی بجائی ہوگی؟ گندم کی بجائی تاخیر سے ہوگی، پھر افراتفری پھیلے گی۔ لہٰذا ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر ہماری دادرسی کی جائے۔ کاشتکاروں نے حکومت سے فوری ملیں چلانے اور گنے کی امدادی قیمت کا اعلان کرنے کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، City 41 چنیوٹ۔ گاڑیوں کی قیمت میں کمی، آٹو موبائل سیکٹر میں سرمایہ کاری بند، کار ڈیلرز اور خریدار قیمتوں میں مزید کمی کے منتظر، کارساز کمپنیوں سے قیمتیں مزید کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیا گاڑیوں کی قیمت میں مزید کمی ہوگی؟ جی ہاں، یہ سوال اس وقت ہر گاڑی خریدنے کے خواہش مند حضرات اور ڈیلرز دونوں کی زبان پر ہے۔ گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کے پیش نظر آٹو موبائل سیکٹر میں سرمایہ کاری رک گئی۔ کار ڈیلرز اور خریدار قیمتوں میں مزید کمی کے منتظر ہیں۔ کار ڈیلرز کہتے ہیں کارساز کمپنیوں کو قیمتیں مزید کم کرنی چاہیے۔ گاڑیوں کے ریٹ ویسے نیچے آنے چاہیے تھے، وہ اس حساب سے گاڑیوں کے ریٹ نیچے نہیں آئے۔ اب جیسے آپ فار ایگزامپل لے لیں کہ یہ گاڑی ہے این ویگن ہے، ٹھیک ہے، یہ گاڑی آج سے کوئی تھوڑی دیر پہلے، کوئی 2-3 سال پہلے یہ 15-20 لاکھ روپے کی گاڑی اویل ہوتی تھی۔ ابھی یہ ہم لوگوں کو انویسٹر حضرات کو گاڑی جو ہے وہ پڑتی ہے 40 کے فگر میں۔ ڈیلرز کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کی قیمت میں کمی محض خانہ پوری تھی۔ 20 سے 30 لاکھ روپے قیمت بڑھا کر 1.5 لاکھ روپے کم کرنا مناسب نہیں۔ حکومت قیمتوں میں نمایاں کمی کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہم لوگ 42 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انویسٹر ہے تو کچھ نہ کچھ تو روزی کے لیے آنی ہے۔ اب یہ کیا سپورٹیج آ گئی، یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے، ٹھیک ہے، تو
85 लाख इसकी ऑक्सिंग कर रहे हैं। इस तरह गाड़ियों की कीमतें नीचे आनी चाहिए, वैसे मेरा नहीं ख्याल के आई है। ऑटो सेक्टर में सरमायाकारी सिफर हो चुकी है। जिस खरीदार को गाड़ी चाहिए वो भी नहीं खरीद रहा। खरीदारों की जानिब से कारसाज कंपनियों से कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ शिराज बाट, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सस्ते हफ्तावार बाजारों का फुकदान, ऊपर से महंगाई का तूफान। हफ्तावार बाजार में भी अशिया की कीमतें ओपन मार्केट के बराबर। अवाम परेशान है, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। फैसलाबाद में सस्ते हफ्तावार बाजारों की किल्लत बढ़ती जा रही है। शहर में मोहिज 2 से 3 सस्ता बाजार लगाए जाते हैं। रही सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी। शहरी कहते हैं इन सस्ते बाजारों का कोई फायदा नहीं। हफ्तावार बाजार में भी अशिया की कीमतें ओपन मार्केट के बराबर हैं। महंगाई तो बहुत ज्यादा है, इधर भी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जो अब ये बेडशीट्स हैं, ये 1500-2000 की यहाँ से मिल रही हैं, तो बाहर से भी इतने के तो लगाने का कोई फायदा कोई नहीं है। फल फ्रूट भी 120 रुपए दर्जन केले हैं, तो इधर भी वो उतना ही रेट है जितना बाहर का रेट है। इसका तो कोई फायदा कोई नहीं है लगाने का। दूसरी जानिब स्टोर्स लगाने वाले छोटे ताजरों ने भी इंतजामात की शिकायत की। बोले इंतजामिया का चेक एंड बैलेंस नहीं। हमें स्टोर्स मिलते हैं ना ग्राहकों को पार्किंग। कीमतें बढ़ाना मजबूरी है, मुश्किल बचत होती है। माल भी महंगा मिलता है और ग्राहक भी कम हो गए। यहाँ पर माल बहुत ज्यादा महंगे हो गए। हम हफ्ते में एक दिन आते हैं, लेकिन फारग सुबह से फारग बैठे हुए हैं। काम नहीं है, 1 रुपए का काम नहीं है, ना इधर कोई सहूलत है, 2 में बैठे हुए हैं। सस्ते बाजार भी सिर्फ नाम के सस्ते रह गए हैं। सब्जी दालों से लेकर अशिया खुर्दोनोश की तमाम चीजें गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इंतजामिया को चाहिए कि इन बाजारों की जिम्मेदारी ले। कैमरामैन जुनेद के साथ शिराज बट, सिटी 41, फैसलाबाद। अमीनपुर बंगला अल मुमताज अस्पताल में डायलिसिस ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने डायलिसिस ब्लॉक का इफ्तिताह किया। राना सनाउल्लाह ने शुरका से खुसूसी खिताब भी किया। आपको सुनवाते हैं। आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इस इलाके के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज उन्होंने एक ऐसी सहूलत जो इस इलाके में पहले मौजूद नहीं थी कि गुर्दा के मरीज़ों का जो डायलिसिस होता है, तो उसके लिए लोगों को यकीनन जिस तरह से डॉक्टर कासिम साहब ने कहा कि लोगों को या तो फैसलाबाद या फिर चन्योट या जंग जाना पड़ता था, तो आज ये सहूलत जो है ये अमीपुर बंगला में यहाँ पे मयसर आ जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन भी है कि जिस तरह से पिछले 20-22 सालों में इस हॉस्पिटल ने तरक्की की है, यहाँ पे मरीज़ों को इलाज की सहूलत जो है वो इस तरीके से मिलती होगी कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बल्कि इलाज होगा प्राइवेट हॉस्पिटल वाला और पैसे होंगे सरकारी हॉस्पिटल वाले। और डॉक्टर कासिम साहब खुदातर इंसान हैं, नेक आदमी हैं। मैंने इस इलाके के हर फर्द से इनके मुतल्लक अच्छी बात सुनी है, तो इनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला भी इनको अजर देगा और हम सब भी इनके लिए दुआगो हैं। जब आप अपने वोट की ताकत से मुझे जो है वो इज्जत देंगे तो एक ही टेन्योर में इंशाअल्लाह ताला जो है वो तमाम आपके बुनियादी काम जो है ये पानी के निकास का देर आए दुरुस्त आए। आम इंतखाबात का ऐलान, खुशाइन करार। फैसलाबाद के सियासी नुमाइंदों ने बेहतरी की उम्मीदें वाबस्ता कर ली। सियासी और मुआशी सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान पैदा हो गया। रहनुमा जमात इस्लामी मियां ताहर अयूब ने आम इंतखाबात के ऐलान को खुशाइंद करार दिया। इनका कहना था कि इलेक्शन के ऐलान से गैर यकीनी का खात्मा हुआ है, जिससे सियासी और माशी सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान है। मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। जो भी पार्टी मैंडेट लेकर हुकूमत बनाती है, इसे अवाम की खिदमत का मौका मिलना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में एक्शन लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से और सदर मुमलकत से एक डेट पे 8 फरवरी को इत्तफाक करवाया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आधार अफसोस भी करूँगा कि ये मामला जो हैं इससे पहले ही सियासतदानों को मिलके या इलेक्शन कमीशन को मिलके तय करने चाहिए। मियां ताहर अयूब ने मजीद कहा कि सियासतदानों को अपने फैसले खुद करने चाहिए। कौमी असम्बली में फैसले होने से जमहूरियत मजबूत होगी।
थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन हमारी सियासत का ये अलमिया है कि हम हर तनाज़ात जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में कोई ना कोई आर्डर जारी करती है। इलेक्शन का इनकाद उम्मीद सहर है, अवाम वोट से हिसाब लेंगी। अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि 8 फरवरी को साफ व शफाफ इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद में कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मुज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान ने तकरीब का एहतमाम किया गया। डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद मुदस्सिर खान की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में नए ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़हब हमआहंगी पाकिस्तान के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद मुदस्सिर खान ने तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में सेक्रेटरी चेयरमैन मजहर सखाफत, मरकजी जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा इंसारी, राना मुदस्सिर, मोहम्मद अशरफ डिस्ट्रिक्ट सदर, डिविजनल ज्वाइंट सेक्रेटरी मलिक तहसीन, नायब सदर राना वकास, डिविजनल नायब सदर राना हसन तारिक, ज्वाइंट सेक्रेटरी करामत अली इंसारी और दीगर शरीक हुए। इस मौका पर डिविजनल जनरल सेक्रेटरी राना मुदस्सिर का कहना था कि तकरीब का मकसद अमन कमेटी के जरिए अवाम में अमन कायम करना है। आज अमन कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमारा इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें न्यू मेंबरान जो हैं उनको नोटिफिकेशन वगैरह मिले हैं और उसके साथ जो मुल्की हालात हैं उसके पेश नज़र हमने एक अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवाई है ताकि मिल बैठकर हम अदारों के साथ चलें और जो मुल्की मसाइल है उनका हल निकालें। तकरीब में नए शामिल होने वाले ओहदेदारान की शमूलियत को खुश आइंद करार दिया गया। कैमरामैन मौजम के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के 8 बाजारों में तजावुजात और पार्किंग का मसला संगीन। अंदरून बाजार ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। डबल पार्किंग के बायस पैदल चलना भी मुहाल, गाहक और दुकानदार दोनों परेशान। फैसलाबाद के 8 बाजारों में तजावुजात और पार्किंग का मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। गाहकों ने बाजार का रुख करना छोड़ दिया, दुकानदारों की परेशानी में इजाफा होने लगा। शहरियों का कहना था कि पार्किंग की वजह से 8 बाजारों में जाना मुश्किल हो जाता है। बाजारों में पार्किंग का बाज़ाब्ता इंतजाम होना चाहिए। ये मसाइल हल किए बगैर बेहतरी लाना मुमकिन नहीं है। दुकानदारों ने कहा कि पार्किंग मसाइल की वजह से गाहक कम आते हैं, बेहतरी लाना अशद जरूरी है। 80 फुट का बाजार है तो उसमें से इन्होंने कार पार्किंग वालों ने 60 फुट गे रखा। इसके बाद कारें आएंगी, कारों के बाद वो दूसरे आ जाएंगे, दुकानदार वगैरह आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि कार पार्किंग कंपनी या तजावुजात के सिलसिले में मकामी इंतजामिया को ये करना चाहिए कि एक मखसूस लाइन एरिया के अंदर इनको खड़ा करना चाहिए। शहरी ने पार्किंग कंपनी और कारपोरेशन से गलत पार्किंग और तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। चनाब के रोड टूट फूट का शिकार, शहरियों को मुश्किलात। जगह जगह गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मंजिल मकसूद तक पर वक्त पहुंचना मुश्किल हो गया। फैसलाबाद में मदीना टाउन सूसा रोड पर कायम चिनाब मार्केट की रोड खस्ताहाल हो गई। जगह जगह गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। इलाका मकीन परेशान, बोले गहरे गड्ढों के बायस कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। बारिश के बाद सड़क की सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। बहुत देर हो गया, तकरीबन 20-25 साल हो गए इस रोड खराब हो। ना कोई ना कोई पुछदा, इतने पानी से सड़क ते बैठे सानी तकलीफ होंगी, गट्टा मिट्टी साढ़े उत्ते पौंदा, कोई सान बचाने वाला नहीं, ना को बचा सकता। 25 साल हो गए खराब होए नु। पानी इतना खड़ा हो जाता, थिगड़िया मंजी बेच जाती, रोड तो बंदे गड्डियां टपेंदे, पानी उड़ उड़ के साढ़े उत्ते पौंदा। इलाका मकीन कहते हैं एक जानिब सड़क की खस्ताहाली से अबतर सूरत हाल है तो दूसरी तरफ सड़क किनारे कूड़े का ढेर दोहरे अजाब का सबब बन रहा है। हुकूमत ने आज तक सड़क की मरम्मत कराई, न ही मुतल्लिका महकमा कभी यहाँ से कूड़ा उठाने आया। काफी देर हो गई है। ये रोड जो है, हम लोग यहाँ पे हर वीकेंड पे आके खेलते हैं तो ये रोड बहुत ज्यादा खराब है। आप इसकी हालत भी बेशक दिखा दें। आइट साइड पे जो अगला रोड है इससे, वो भी बहुत ज्यादा खराब है। लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जो एरिया इसके साथ रोड है ये भी खराब है, उससे अगले वाला भी रोड है वो भी खराब है। कोई भी इधर नहीं आता, कोई भी आके वर्क नहीं करता, कोई भी नहीं देख रहा। ये पड़ा हुआ है साइड पे, कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है यहाँ पे आके इसको ठीक करने के लिए। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढे शहरियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया ने मुकम्मल चुप साध रखी है। शहरियों ने गड्ढे ठीक करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अहमद साद, सिटी 41, फैसलाबाद।